Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture, we have discussed about rotation and revolution of the earth. I hope you understood very well about these topics, and in the today's lecture we will see about summer solstice, winter solstice, spring equinox and autumn equinox. So let's get started topic. So in the last lecture we have discussed about revolution and rotation. I hope you understood very well about this all the topics. Today first of all we will see one animated video. I hope this video will very useful for your home preparation. So I'll start one video. Solstice and equinox. As the earth revolves around the sun, we experience different seasons. Let us see how it happens. Summer solstice. On 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. As a result, a large portion of the northern hemisphere receives sunlight more directly and experiences summer. This day is called summer solstice, as the northern hemisphere experiences summer. At the same time, a smaller portion of the southern hemisphere is tilted away from the sun and receives sunlight at a slanting angle. This causes the southern hemisphere to experience winter. Winter solstice. On 22nd December, the northern hemisphere is tilted away from the sun. As a result, it receives sunlight at a slanting angle and experiences winter. This day is called winter solstice, as the northern hemisphere experiences winter. At the same time, the southern hemisphere is tilted towards the sun and receives sunlight more directly. This causes the southern hemisphere to experience summer. Equinoxes. As the earth revolves and reaches this position on 21st March, we can see that neither of the poles is tilted towards or away from the sun. As a result, both the hemispheres receive equal heat and the whole earth experiences equal day and equal night. Since the northern hemisphere experiences spring during this time, this day is called spring equinox. As the earth revolves and reaches this position on 23rd September, we can see that neither of the poles is tilted towards or away from the sun. As a result, both the hemispheres receive equal heat and the whole earth experiences equal day and equal night. Since the northern hemisphere experiences autumn during this time, this day is called autumn equinox. So in this video we have seen summer solstice, winter solstice and spring equinox and autumn equinox. I hope you understood very well about all the topics, all the points. Once again I repeat all the points. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि रिवॉल्यूशन से क्या होगा, हमारे अर्थ पे सीजन्स आएगी. जैसे सीजन्स की बात करें, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, रेनी सीजन, ये सभी सीजन्स होती है. तो ये सभी सीजन्स क्यों आती है? ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. एंड रोटेशन से क्या होगा? रोटेशन से डे एंड नाइट होगा. जैसे हमारी अर्थ रोटेट होती है तो जो भी पार्ट है वहाँ पर सनरेज आएंगे, वहाँ पर डे टाइम चल रहा होगा, और जहाँ पर भी सनरेज नहीं फॉल होंगे वहाँ पर नाइट टाइम चल रहा होगा. सो ड्यू टू रोटेशन वी ऑब्जर्व डे एंड नाइट टाइम, बट ड्यू टू द रिवॉल्यूशन वी ऑब्जर्व सीजन ऑन द अर्थ. सो इसीलिए हमें सीजन्स देखने को मिलती है. और यहाँ पर हम देख सकते हैं इन द पिक्चर समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. और हमने इस वीडियो में भी यही देखा कि
कैसे सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है और नदर्न हेमिस्फीयर में समर चल रही होती है, विंटर में मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होती है, तो ये सभी कंडीशन कैसे जनरेट होती है उसके बारे में हमने देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी अर्थ की लोकेशन है यहाँ पर और सन की लोकेशन है यहाँ पर। सो हम देख सकते हैं कि इस पिक्चर में जो अर्थ की जो लोकेशन है, यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है ये सन से नज़दीक है और ये साउथ पोल है कंपेयर टू नॉर्थ पोल ये सन से काफ़ी दूर है। सो हम देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल सन से काफ़ी नज़दीक होने के कारण नॉर्थ पोल पे सन के डायरेक्ट रेज फॉल हो गए और साउथ पोल पे सन के स्लैंटिंग रेज फॉल हो गए। इसी के कारण नॉर्थ पोल पे समर सीजन चल रही होगी और वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा। देन सेकंड सिचुएशन में हम यहाँ देख सकते हैं विंटर में क्या हुआ कि अर्थ रिवॉल्व होती है तो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक विंटर वाली जो सिचुएशन है यहाँ पर पहुँची। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपेयर टू नॉर्थ पोल जो साउथ पोल है ये सन से नज़दीक है और ये जो नॉर्थ पोल है ये थोड़ा दूर है कंपेयर टू साउथ पोल और इसी के कारण साउथ पोल वाले पार्ट में हमें टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा और साउथ पोल में साउथ हेमिस्फीयर में वहाँ पर समर सीजन चल रही होगी, बट ज़्यादातर अर्थ का पार्ट हमें नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल रहा है। सो हम कहेंगे कि ये टाइम पे हमारी अर्थ पे जनरली विंटर सीजन चल रही होगी, क्योंकि जो नदर्न वाला पार्ट है यहाँ पर डायरेक्ट सनफॉल नहीं फॉल हो रहा है, बट जो सदर्न वाला पार्ट है यहाँ पर डायरेक्ट सनफॉल हो रहा है। सो दिस इज सेकंड कंडीशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले हमारी अर्थ यहाँ पर थी और यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि नॉर्थ पोल है वो सन से नज़दीक था, बट ये कंडीशन में हम देख सकते हैं कि साउथ पोल है ये सन से नज़दीक है। इसीलिए जो डिफरेंट पोल है, डिफरेंट हेमिस्फीयर है, वहाँ पर हमें डिफरेंट सीजन देखने को मिलती है और ये सभी एक प्रोसेस से होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्यूशन। So in the video we have discussed about summer solstice, winter solstice, spring equinox and autumn equinox। So ये सभी कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। सो सपोज 21 जून का टाइम है, इसको हम कहेंगे समर सोल्टाइस। सो समर सोल्टाइस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून एंड यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, ये सन है और सन की बात करें तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है मीन्स नदर्न पोल है ये सदर्न पोल है, तो नदर्न पोल सन से नज़दीक है कंपेयर टू सदर्न पोल। यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा सा नदर्न पोल है वो सन के सामने झुका हुआ मीन्स टिल्टेड हमें देखने को मिल रहा है और जो सदर्न पोल है सदर्न हेमिस्फीयर है थोड़ा दूर हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर पे हमें स्ट्रेट सन रेज देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सन के स्ट्रेट रेज फॉल होंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रेट रेज नहीं होंगे बट स्लैंट सन रेज होंगे और इसी के कारण नदर्न हेमिस्फीयर पे हमें गर्मी मीन्स हॉट टेम्परेचर देखने को मिलेगा एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे स्लैंटिंग सन रेज फॉल होने के कारण हमें यहाँ पर काफ़ी ठंडा टेम्परेचर मीन्स कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसीलिए नियर 21 जून ये टाइम के दौरान नदर्न हेमिस्फीयर पे समर चल रहा होगा और सदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सीजन चल रही होगी। आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर समर सोल्टाइस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून इन द अर्थ। देन हमने सेकेंड कंडीशन ये देखी थी विंटर सोल्टाइस की। सो विंटर सोल्टाइस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 दिसंबर। सो 22 दिसंबर पे क्या सिचुएशन होगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो सन यहाँ पर होगा क्योंकि हमारी अर्थ रिवॉल्व हो रही है। पहले हमने देखा सन यहाँ होगा बट ऐसा नहीं है, सन स्टेशनरी है, सन एक ही जगह पर होगा
बट हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व हो रही है, जैसे हमने वीडियो में देखा था। सो सन की बात करें तो सन की लोकेशन अब यहाँ होगी, और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल काफ़ी नज़दीक होगा कंपेयर टू नॉर्थ पोल, और इसी के कारण साउथ पोल पे स्ट्रेट सनरेज फॉल हो गए और नॉर्थ पोल पे स्लैंट सनरेज फॉल हो गए, और इसी के कारण सदर्न हेमिस्फीयर पे समर सीजन चल रही होगी और नदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सीजन चल रही होगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सदर्न हेमिस्फीयर सदर्न पोल वाला पार्ट है ये थोड़ा टिल्टेड है टुवार्ड्स सन, एंड नदर्न वाला पार्ट है ये अवे है, मीन्स उसका डिस्टेंस सन से काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के कारण विंटर सोल्टाइस की बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सीजन होगी और सदर्न हेमिस्फीयर पे समर सीजन चल रही होगी। देन हम बात करें स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर पे स्प्रिंग सीजन चल रही होगी। सो इक्विनॉक्सिस में क्या होगा, इक्विनॉक्सिस में कोई पोल सन से दूर भी नहीं होगा और सन से नज़दीक भी नहीं होगा, दोनों का डिस्टेंस सन से सेम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों एक सेम पोजीशन पे है, मीन्स कोई दूर नहीं है कोई नज़दीक नहीं है, तो ये सिचुएशन को हम कहेंगे इक्विनॉक्सिस। एंड ये सिचुएशन पे क्या होगा, पूरी हमारी सारी अर्थ पे एक ही सीजन चल रही होगी। बट ऑन द 21st मार्च नदर्न हेमिस्फीयर पे स्प्रिंग सीजन चल स्टार्ट होती है, तो इसीलिए हम 21st मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्सिस ऑब्जर्व कर रहे होंगे। सो स्प्रिंग इक्विनॉक्सिस is observed on 21st मार्च। सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन कि 21st मार्च पे क्या होगा, नदर्न पोल एंड साउथ पोल दोनों में से कोई भी पोल सन के टुवार्ड्स नहीं होगी, दोनों सेम पोजीशन पे होगी और सन से सेम डिस्टेंस दोनों का होगा, और इसी के कारण पूरी अर्थ में हमें सेम टेम्परेचर सेम सीजन देखने को मिलेगी। देन फोर्थ कॉन्सेप्ट इज ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd सितंबर। यहाँ पर एक मिस्टेक है कि इस पे लिखा है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बट हमने देखा कि 21st मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा और ऑटम इक्विनॉक्स होगा 23rd सितंबर पे। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सेम सिचुएशन एज स्प्रिंग इक्विनॉक्स कि कोई भी नदर्न पोल या फिर सदर्न पोल कोई सन से दूर नहीं होगा या फिर नज़दीक भी नहीं होगा, दोनों सेम पोजीशन पे होंगे, इसीलिए हमारी पूरी अर्थ पे एक ही सीजन चल रही होगी। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि दोनों पोजीशन पे स्ट्रेट सनरेज फॉल होंगे। बट नदर्न हेमिस्फीयर पे इस टाइम के दौरान ऑटम सीजन चल रही होगी, इसीलिए हम इसको कहेंगे ऑटम इक्विनॉक्स। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑटम इक्विनॉक्स ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd सितंबर। सो अब तक हमने देखा चार कॉन्सेप्ट के बारे में, समर सोल्टाइस, विंटर सोल्टाइस, देन स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स। तो ये सभी पॉइंट्स को हम फिर से रिकैप करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीजन्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। हमने बात की थी कि जो अर्थ की रिवॉल्यूशन होगी इसी के कारण सीजन्स देखने को मिलती है। देन समर सोल्टाइस की बात की कि जो नॉर्थ पोल वाला पार्ट है ये सन से काफ़ी नज़दीक होगा, सो हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन इज नदर्न हेमिस्फीयर एंड समर सोल्टाइस इज ऑब्जर्व ऑन 21st जून। सो इन द पिक्चर वी कैन सी द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन ऑन द समर सोल्टाइस। देन नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर पे समर टाइम चल रहा होगा, क्योंकि जो नदर्न हेमिस्फीयर है सन के टुवर्ड्स टिल्टेड है और इसी के कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एंड सदर्न हेमिस्फीयर ऑब्जर्व विंटर ड्यूरिंग द समर सोल्टाइस।
देन हमने विंटर सोल्टाइस के बारे में देखा. विंटर सोल्टाइस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 दिसंबर एंड हेमिस्फीयर tilted towards the sun is southern hemisphere. So in the picture we can see the southern hemisphere is tilted toward the sun on winter solstice. Then in the northern hemisphere we can see winter during winter solstice, and in the southern hemisphere we can observe summer time during winter solstice. So you must remember all the point. So यहाँ पर एक फिगर के द्वारा बताया गया है कि क्या कंडीशन होगी जब भी हमारी अर्थ है वो यहाँ पर होगी. यहाँ पर क्या होगा, नदन पोल है, ये सन से नज़दीक है, इसीलिए नदन पोल पे समर होगा, और सदर्न पोल मीन सदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पर विंटर का टाइम चल रहा होगा. बट सेकेंड कंडीशन ये है कि हमारी अर्थ रिवोल्यूशन करती है तो धीरे धीरे रिवॉल्व होके यहाँ पर पहुँची. और सेकेंड कंडीशन विंटर सोल्टाइस की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नदर्न पोल है ये सन से दूर है, और जो सदर्न पोल है ये सन से नज़दीक है, इसीलिए नदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सीजन होगी और सदर्न हेमिस्फीयर पे समर सीजन हमें देखने को मिलेगी. So this is about summer solstice, winter solstice, spring equinox and autumn equinox. I hope you understood very well about all the topics. And let's see some question answer. It is related to summer solstice, winter solstice, spring equinox and autumn equinox. So first of all we have two MCQ. So first MCQ is about direct rays of the sun fall on the equator on 21st मार्च, 21st जून और 22 दिसंबर. सो हमने देखा था स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21st मार्च, एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दौरान ही क्या होता है कि सन के डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे फॉल हो गए. मीन्स हमने देखा था कि इक्विनॉक्स में क्या होगा, अर्थ की सभी पार्ट पे सेम रेज फॉल हो गए सन के. सो यहाँ पर राइट आंसर है 21st मार्च. देन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन विच कंट्री? जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. सो जापान एंड इंडिया की लोकेशन की बात करें तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन की बात करें तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में है. और हमने देखा जहाँ पर विंटर होगा वहाँ पर समर नहीं होगा. मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर पे अगर विंटर होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर पे समर चल रहा होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर पे अगर विंटर चल रहा होगा तो नदर्न हेमिस्फीयर पे समर चल रहा होगा. एंड क्रिसमस हम कब ऑब्जर्व करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस हम जब भी विंटर चल रहा होगा तभी हम ऑब्जर्व करेंगे. एंड इसीलिए 25 दिसंबर को जनरली क्रिसमस ऑब्जर्व होती है इन द नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर पे ये टाइम के दौरान विंटर सीजन चल रही होगी. बट ऑस्ट्रेलिया इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे 25 दिसंबर को गर्मी होगी, समर होगी, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया वाले लोग, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लोग क्रिसमस ऑब्जर्व करते हैं इन द समर. सो यू मस्ट रिमेंबर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया. देन हियर वी हैव वन fill in the blank. So the sun's rays fall vertically on the tropic of blank on 21st June. So कौन से ट्रॉपिक पे सन के डायरेक्टली वर्टिकली रेज फॉल हो गए ऑन द 21st जून? सो 21st जून पे आई थिंक समर सीजन चल रही होगी इन द नदर्न हेमिस्फीयर, एंड इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिल रहा है वहाँ पर सनरेज काफ़ी वर्टिकली फॉल करेंगे. सो राइट आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. Then here we have one interesting question. So why do the poles experience about 6 months day and 6 months night?
जो पोल वाला पार्ट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पर क्या होता है, 6 मंथ्स का डे होता है और 6 मंथ्स की नाइट होती है। मीन्स 6 मंथ्स कंटिन्यूसली सन रेज फॉल हो गए और 6 मंथ्स कंटिन्यूसली डार्क टाइम चल रहा होगा। तो ये रीज़न क्या है कि इसके पीछे रीज़न क्या होगा। सो ड्यूरिंग द समर solstice the north pole is inclined towards the sun। समर सोल्टाइस के टाइम के क्या होगा कि नॉर्थ पोल है वो टिल्ट होगा टुवार्ड्स द सन। इट एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 months, whereas the south pole does not receive any sunlight and experiences night for the 6 month। सो हमने देखा समर सोल्टाइस के टाइम के दौरान क्या होगा, नॉर्थ पोल है वो टिल्ट होगा टुवार्ड्स द सन, इसीलिए नॉर्थ पोल पे हमें कंटिन्यूसली 6 मंथ्स के दौरान डे टाइम देखने को मिलेगा। और जो साउथ पोल वाला पार्ट है वो समर सोल्टाइस के दौरान कोई सनलाइट रिसीव नहीं करेगा, इसीलिए साउथ पोल पे हमें 6 मंथ्स की नाइट टाइम देखने को मिलेगी। In the same way, during the winter solstice, the South Pole experiences 6 months of the day and the North Pole experiences 6 months of the night। इसी तरीके से विंटर सोल्टाइस के दौरान साउथ पोल है वो सन के टुवार्ड्स टिल्ट होगा, इसीलिए साउथ पोल पे हमें 6 मंथ का डे देखने को मिलेगा, बट नॉर्थ पोल डजेंट रिसीव एनी सनलाइट ड्यूरिंग द विंटर सोल्टाइस। और इसी के कारण नॉर्थ पोल पे हमें 6 मंथ्स की नाइट देखने को मिलेगी ऑन द विंटर सोल्टाइस। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस रीजन। देन लेट्स मूव टू द डिफरेंस बिटवीन समर सोल्टाइस एंड विंटर सोल्टाइस। सो फर्स्ट पॉइंट इन समर सोल्टाइस, सो इट ओकर्स ऑन 21st June। देन विंटर सोल्टाइस की बात करें, इट ओकर्स ऑन 22nd December। सो दिस 2 पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर। समर सोल्टाइस कहाँ पर कौन सी डेट पर होगा, 21st June पे, एंड विंटर सोल्टाइस कहाँ पर होगा, कौन सी डेट पर होगा, 22nd December। अगर आपको मंथ में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक देता हूँ कि जून टाइम के दौरान हमारा समर वेकेशन होता है इन द स्कूल डेज। सो यहाँ पर हमें याद रखना है समर वेकेशन होगा, इसीलिए 21st June को समर सोल्टाइस होगा। एंड दिसंबर मंथ के दौरान विंटर वेकेशन होता है। वेस्टर्न कंट्री में भी क्रिसमस का टाइम होगा, तो दिसंबर मंथ के दौरान आपको याद रखना है विंटर सोल्टाइस, क्योंकि यहाँ पर विंटर का टाइम चल रहा होता है एंड वेस्टर्न कंट्री पे यहाँ पर क्रिसमस की छुट्टियाँ होती है। सो इसी के कारण आपको मंथ याद रह जाएंगे। समर वेकेशन जून मंथ में होता है, इसीलिए जून 21st June इज रिलेटेड टू समर सोल्टाइस एंड 22nd December यहाँ पर विंटर वेकेशन होता है, इसीलिए विंटर सोल्टाइस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22nd December। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। देन इन द समर सोल्टाइस द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवार्ड द सन। समर सोल्टाइस पे क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर है वो सन के टुवार्ड्स थोड़ा टिल्ट होगा, एंड इन द विंटर सोल्टाइस द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन। विंटर सोल्टाइस पे क्या होगा, जो सदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है ये टिल्ट होगा टुवार्ड्स द सन। तो ये दो आपको पॉइंट याद रखना है कि समर सोल्टाइस पे नदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होगा और विंटर सोल्टाइस पे सदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होगा। देन द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समर सोल्टाइस की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन के सीधे वर्टिकली रेज फॉल होंगे, एंड इन द विंटर सोल्टाइस द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। विंटर सोल्टाइस पे क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर सन के डायरेक्टली वर्टिकली रेज फॉल होगी। Then, in a summer solstice, it is summer in the northern hemisphere and winter in the southern hemisphere. And in the winter solstice, it is winter in the northern hemisphere and southern in the summer in the southern hemisphere. So, समर सोल्टाइस की बात करें तो
नदर्न हेमिस्फीयर पे समर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर होगा। बट विंटर सोल्टाइस के दौरान नदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर होगा एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे समर टाइम चल रहा होगा। सो यू मस्ट रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन समर सोल्टाइस एंड विंटर सोल्टाइस। Then our next question is, what is an equinox? Equinox क्या है? So on 21st March and 23rd September, direct rays of the sun fall on the equator. The whole earth experiences equal days and equal nights on these days. As neither of the poles are tilted towards the sun, this is called an equinox. इक्विनॉक्स क्या होता है, हमने देखा था 21 मार्च एंड 23 सितंबर पे सन के डायरेक्ट रे से वो इक्वेटर पे फॉल होते हैं। देन द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स ऑन दिस डे, और ये डे के दौरान हमारी पूरी अर्थ इक्वल डेज इक्वल नाइट्स एक्सपीरियंस करेगा। मीन्स 12 आवर का डे होगा, 12 आवर की नाइट होगी। एंड एज नाइदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड टुवार्ड्स सन, हमने देखा समर सोल्टाइस पे नदर्न हेमिस्फीयर है ये टिल्ट होता है टुवार्ड्स सन, एंड विंटर सोल्टाइस में देखा सदर्न पोल है वो ये टिल्ट होता है टुवार्ड द सन। बट ये कंडीशन पे क्या होगा, कोई भी पोल सन के टुवार्ड्स टिल्ट नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड अन इक्विनॉक्स। Then next question is, why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of the northern hemisphere? So the southern and northern hemisphere experience summer and winter solstice in different times because during a solstice only one of these hemisphere is tilted towards the sun. सो क्वेश्चन ये है कि दोनों जो हेमिस्फीयर है वो डिफरेंट टाइम पे समर सोल्टाइस ऑब्जर्व करते हैं। मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर टाइम चल रहा होगा एंड नदर्न हेमिस्फीयर पे समर टाइम चल रहा होगा। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है? हमने देखा कि द सदर्न एंड नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर एंड विंटर सोल्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स बिकॉज ड्यूरिंग अ सोल्टाइस ओनली वन ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इसका रीज़न ये इसीलिए है कि सोल्टाइस के दौरान ओनली एक ही हेमिस्फीयर सन के टुवार्ड्स टिल्ट होता है, इसीलिए नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में समर एंड विंटर सोल्टाइस का टाइम डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। So in this video we have discussed about 4 important topics: summer solstice, winter solstice, then spring equinox and autumn equinox. I hope you understood very well about all the topics, and if you have any doubts regarding these topics you can ask me anytime. आप 6 स्टैंडर्ड पे हो, ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स है, काफ़ी सारी डेट्स है, काफ़ी सारे डिफरेंट पॉइंट्स है, तो आप सभी को इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्टली जल्द ही से मेरा कांटेक्ट कीजिए और अपना डाउट सॉल्व कीजिए, क्योंकि डाउट अगर नहीं सॉल्व होगा तो आपको आगे के टॉपिक नहीं समझ में आएंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताओ, मैं अगेन ये टॉपिक को रिपीट करवाऊंगा, एंड कोई डाउट हो तो आप मुझे तुरंत ही पूछ लो क्योंकि डाउट सॉल्व होना ज़रूरी है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव फर्दर इन द टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।